بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میٹیریا میڈیکا کی جس میڈیسن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریس ٹاکس۔ ریس ٹاکس بہت ہی پولیکریسٹ اور فیمس ریمیڈی ہے ہمارے میٹیریا میڈیکا کی۔ اس میڈیسن کا پورا بوٹینیکل نیم ریس ٹاکسیکوڈینڈرون ٹاکسیکوڈینڈرون کامنلی اس کو پوائزن اوک یا پوائزن ایوی یا سنو روز بھی کہا جاتا ہے۔ پوائزن ایوی کے نام سے اس کو کامنلی جانا جاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ ریمیڈی پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے، ویجیٹیبل کنگڈم، اینجیوسپرم پلانٹس یعنی فلاورنگ پلانٹس۔ ریس ٹاکس از اے فلاورنگ پلانٹ اور اس کی فیملی ایناکارڈیسی اس کی فیملی ہے، اس کا خاندان ہے۔ پلانٹ کنگڈم، اینجیوسپرم پلانٹ، ایناکارڈیسی خاندان یا فیملی۔ اب فیملی کے بعد اس کا جینس رس RHUS رس جینس کی اور بھی پلانٹس ہیں، لیکن اس کی جو اسپیشی ہے دیٹ از ٹاکسیکوڈینڈرون یوں اس کا پورا بوٹینیکل نیم رس ٹاکسیکوڈینڈرون، پلانٹ کنگڈم، اینجیوسپرم، ایناکارڈیسی۔ ڈاکٹر صاحبان ہماری اس ریمیڈی کے پروور ہنی مین خود ہیں۔ ڈاکٹر ہنی مین نے اس میڈیسن کو 1816 یعنی 1816 میں پروو کر کے ہومیوپیتھک سسٹم میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اگر ہم اس کی ہومیوپیتھک انٹروڈکشن کو دیکھیں، یہ تو پہلے تھی اس کی بوٹینیکل انٹروڈکشن، اگر ہم اس کی ہومیوپیتھک انٹروڈکشن کو دیکھیں تو دس از ویری شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی، ویری شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی۔ شارٹ ایکٹنگ ریمیڈیز کا یہ تھیم ہوتا ہے کہ ہم ان کو فریکوینٹلی ریپیٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا باڈی میں ایکشن 1 to 7 days۔ اب ریس ٹاکس کا باڈی میں ایکشن تقریباً 1 ہفتے تک رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے میازم کی بات کریں تو یہ سورا بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا میازمیٹک بیک گراؤنڈ سورا ہے۔ اس کا ٹیمپرامنٹ پیشنٹ کا اریٹیبل، یعنی مریض اریٹیٹو ہوتا ہے، اریٹیبل ٹیمپرامنٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم تھرمل کی بات کریں، تھرمل ریئیکشن کی، تو تھرمل ٹیمپرامنٹ اس کا ویری چلی پیشنٹ، جس کو ہم C3+ کہہ سکتے ہیں، C3+ یا C+3، ویری چلی پیشنٹ، یعنی یہ ہماری موسٹ کولڈ ریمیڈیز کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ چونکہ یہ ڈاکٹر صاحبان پلانٹ ہے اور پلانٹ کے اندر الکلائڈز ہوتے ہیں، فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں، تو آج ہماری اس میڈیسنز کے جو فیمس الکلائڈ ہیں، جو بہت ہی مشہور اس کے کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، وہ 2 مین ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ٹاکسیکوڈینڈرک ایسڈ، ٹاکسی اس کے اسپیشیز کے ساتھ میچ کر رہا ہے، ٹاکسیکوڈینڈرک ایسڈ، اور دوسرا روٹینک ایسڈ۔ ٹاکسیکوڈینڈرک ایسڈ اور روٹینک ایسڈ، یہ اس کے 2 فیمس کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں۔ اٹ مینس دیٹ باڈی میں جو بھی پیتھولوجیکل چینجز آتی ہیں، جو فزیولوجیکل ایکشن آئے گا، وہ مین ان الکلائڈز کا، ان کیمیکل کنسٹیٹیوئنٹس کا باڈی کے اندر یہ چینجز لانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ سب سے پہلے میں مختصر اس کے نام پہ بات کروں گا، جس کو ہم ایٹیمولوجی کہتے ہیں۔ ایٹیمولوجی، اس کا نام رس ٹاکسیکوڈینڈرون ہے۔ ڈاکٹر صاحبان رس گریک زبان میں رس کا مطلب، the name رس means red،
रस का मतलब होता है रेड, रेड। और इसमें लफ्ज रस क्यों यूज किया गया है कि इसके फ्लावर्स का कलर रेड होता है, इसके फूलों का कलर रेड होता है। इस वजह से बॉटनिस्ट ने इसके जीनस को नाम दिया है रेड। इसके इस जीनस के तमाम प्लांट्स के फ्लावर्स का कलर क्या होगा, रेड होगा, और इस वजह से इसको नाम रस दिया गया है। रस मीन्स रेड। टॉक्सिकोडेंड्रॉन, अच्छा, इसके फ्लावर्स और लीव्स दोनों का कलर रेड होता है, बिलखुसूस मौसम खजा में, ऑटम में। इसके मौसम खजा में इसके लीव्स का भी और इसके फूलों का, दोनों का कलर क्या होगा, रेड होगा। अगला जो लफ्ज है टॉक्सिकोडेंड्रॉन, टॉक्सिकोडेंड्रॉन। अब टॉक्सी नाम से ज़ाहिर है टॉक्सिन से है, टॉक्सी, टॉक्सिक, टॉक्सिन से है। डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री, शरब्स, इवी, कोई प्लांट, बूटी, जहरीला पौधा, टॉक्सिकोडेंड्रॉन। पॉइजन्स इवी, ये जैसे इसके नाम है पॉइजन्स इवी, पॉइजन्स ऑफ, पॉइजन्स ट्री, ये टॉक्सिकोडेंड्रॉन को कहा जाता है। और रेस मीन्स रेड ड्यू टू इट्स कलर्स ऑफ द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द रेस्टॉक्स। इसको बॉटनिस्ट ने जीनस को रस कहा और टॉक्सिकोडेंड्रॉन स्पीशीज को यूज किया कि ये टॉक्सिक प्लांट है। अब यहां से हमें इंट्रोडक्शन से ही समझ आ गया ये एक पॉइजनस इवी है, एक जहरीला पौधा है, एक जहरीली बूटी है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन होम्योपैथी बाय डॉक्टर हनीमैन इन 1816। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी। और इसके साथ, रेस्टॉक्स के साथ, डॉक्टर बोरेक ने ब्रायोनिया को, रेस्टॉक्स के साथ ब्रायोनिया को, डॉक्टर हनीमैन ने कहा है कि ब्रायोनिया हैज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स like rust toxicodendrons, so that's why Hahnemann calls them these two antagonistic sister remedies, सिस्टर रेमेडीज। और ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट भी हैं, लेकिन इन दोनों में एक जो मेजर फर्क है, अब वैसे तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं और इनकी बिलखसूस जॉइंट्स में, मसल्स में, पेन्स में, दोनों की इलामात तकरीबन सेम होगी, लेकिन एक मेजर जो फर्क है वो ये है कि रेस्टॉक्स की पेन्स वर्स होती हैं, वर्स होती हैं बाय रेस्ट। जब ये मरीज रेस्ट करता है तो इसकी इलामात बढ़ जाती हैं। रेस्ट करने के बाद जब ये दोबारा मूव करेगा तो फर्स्ट मूवमेंट इज द टू मच डिफिकल्ट। ये रेस्टॉक्स का बिल्कुल थीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की नोट। रेस्टॉक्स का मरीज रेस्ट में जाता है, रेस्ट में जाने के बाद जब फर्स्ट स्टेप लेगा, जब दोबारा मूव करेगा तो उसको, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। शाटिका में, मस्कुलर पेन्स में, जॉइंट्स में, इसमें हम इसी सिम्टम्स को प्रेफर कर रहे होते हैं कि अगर मरीज ये कहे कि मैं अगर एक जगह पे बैठ जाऊं तो फिर वहां से मेरे लिए उठना मुश्किल हो जाता है, फिर मेरे लिए वहां से, फिर मैं चंद कदम चलता हूं तो कदरे बेहतर हो जाता हूं। क्यों कि इसकी इसकी जो है वो बेटर होती है बाय मोशन। जो ही वो थोड़ा सा मूव करेगा तो कंपेरेटिवली बेटर होना शुरू हो जाएगा, जबकि ब्रायोनिया इसके ऑपोजिट है, इसके कंट्रास्ट में है। ब्रायोनिया का मरीज रेस्ट में कदरे बेहतरी महसूस करता है और मोशन में वो वर्स हो जाएगा। जब वो मूव करेगा, किसी भी किस्म की मूवमेंट करता है, ब्रायोनिया की नोट है स्लाइटेस्ट मूवमेंट कॉज द पेन और प्रॉब्लम्स फॉर दैट पेशेंट। उस पेशेंट के लिए स्लाइटेस्ट मूवमेंट, थोड़ी सी मूवमेंट भी उसके लिए तकलीफ दे साबित होगी। जबकि रेस्टॉक्स का मरीज जब रेस्ट करेगा और रेस्ट के बाद उसको प्रॉब्लम होगी, जब थोड़ा सा मूव करेगा तो वो बेटर हो जाएगा। तो इस एक पॉइंट पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे इन दोनों को, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट भी हैं और डॉक्टर हनीमैन ने इनको एंटागोनिस्टिक सिस्टर रेमेडी का नाम दिया है।
इसका जो मदर टिंचर है डॉक्टर सलमान, इसका जो मदर टिंचर है रेस्टॉक्स का, वो इसके फ्रेश फ्रेश लीव्स और फ्लावर्स, और बिलखसूस लीव से, इसका मदर टिंचर फ्रेश लीव से तैयार किया जाता है। लेकिन वो लीव्स कलेक्ट कब किए जाते हैं? एक तो शाम के वक्त, इवनिंग टाइम, इवनिंग। दूसरा जून या जुलाई में जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब इसका फ्लावरिंग टाइम होता है, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग टाइम, जून जुलाई में इसके फ्लावर आते हैं उससे थोड़ा पहले। और इसके लीव्स को कलेक्ट कब करेंगे? इवनिंग में। अब इस इवनिंग में भी इसकी एक डॉक्ट्राइन छुपी हुई है, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, जो कि किसी भी मेडिसिन की बहुत अहम चीज होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अब इसकी डॉक्ट्राइन क्या है कि ये प्लांट बिलखसूस रात के वक्त जब अंधेरा छा जाता है, जब लाइट खत्म हो जाती है, एब्सेंस ऑफ द सनलाइट, एब्सेंस ऑफ द सनलाइट, जब लाइट खत्म हो जाएगी, सूरज डूब जाता है रात के वक्त, शाम के वक्त, a peculiarity of the plant is that it is more poisonous during the night. It is more poisonous during the night. यानी सूरज की रोशनी जब खत्म हो जाती है रात के अंधेरे में, इसके अंदर ज्यादा जहरीले असरात आ जाते हैं। इसके जैसे कहते हैं कि इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर जहरीलापन ज्यादा आ जाता है, इसलिए हम इसको शाम को कलेक्ट करते हैं, इवनिंग के टाइम। अब पेशेंट में भी यही चीज आ रही होती है कि पेशेंट की जो तकालीफ हैं वो भी इवनिंग के टाइम बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब सूरज गुरूब होना शुरू होता है, जब सनलाइट खत्म होती है शाम के वक्त, रात के अंधेरे में, इसके पेशेंट्स की तकालीफ बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज, एब्सेंस ऑफ द सनलाइट टुगेदर विद डैम्पनेस। अच्छा, जब जैसे आप ये समझ लें कि आप किसी एक उसमें तहखाने में रह रहे हैं, एक बेसमेंट में रह रहे हैं, तो वहां वैसे भी सूरज की रोशनी कम पहुंचती है, नहीं पहुंचती। अब इसके मरीज को, रेस्टॉक्स का मरीज, मॉइस्टनेस के एरियाज में, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा, या जहां पर जो बेसमेंट में रहने वाले लोग हैं, यानी कि इसमें तहखानों में रहने वाले लोग, डैम्पनेस में रहने वाले लोग, ह्यूमिडिटी के एरियाज में रहने वाले लोग, उनमें इसकी इलामात ज्यादा आती हैं। वो पेशेंट इसके लिए फेवरेबल होते हैं। अब यहाँ पर डॉक्ट्राइन भी क्या कह रही है कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एक तो लाइट गायब हो जाती है, टुगेदर विद डैम्पनेस, दूसरा जहां पर डैम्पनेस होगी, सीम्स टू फेवर द एक्सलेशन ऑफ टॉक्सिकोडेंड्रिक एसिड। तो उस सूरत में इस प्लांट से टॉक्सिकोडेंड्रिक एसिड्स का इखराज, एक्सलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी डॉक्ट्राइन, दो डॉक्ट्राइन हो गई कि शाम के वक्त इसकी पॉइजनस बढ़ जाएगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, पेशेंट्स की कंप्लेंट बढ़ जाती हैं। डैम्पनेस में, एब्सेंस ऑफ द लाइट, ये इसका टॉक्सिकोडेंड्रिक एसिड्स की एक्सलेशन बढ़ जाती है। तीसरी चीज, वन प्रूवर ऑफ रेस्टॉक्स was not influenced by contact with the leaves when his skin was dry. एक प्रूवर ने ये ऑब्जर्व किया, जब उसकी जिल्द खुश्क थी, जब उसकी स्किन ड्राई थी, और उसने रेस्टॉक्स के पौधे को हाथ लगाया, हालांकि इसके पौधे, इसके प्लांट्स को हाथ लगाने से फौरन स्किन में आर्टिकेरिया, इरिटेशन, जिसको हम एलर्जीज कह सकते हैं, ईचिंग शुरू हो जाती है, बर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन उस प्रूवर ने ये ऑब्जर्व किया कि जब मेरी स्किन खुश्क थी और मैंने इसके पौधे को हाथ लगाया तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब मेरी स्किन पर परस्पिरेशन था, पसीना था, स्वेटिंग थी,
तो मुझे स्किन सिम्टम्स ज्यादा महसूस हुई। यही वजह है कि डॉक्टर साहब रेस्ट टॉक्स मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी में इसकी तकालीफ बढ़ जाती है। जहां पर भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, वहां इसकी तकालीफ बढ़ जाएंगी। अब देखें इसकी होम्योपैथिक प्रूफ में क्या है कि जब बारिश में भीगने से, रेनी सीजन में बारिश में भीगने से इसकी इलामात बढ़ जाती हैं। जबकि शख्स बारिश में भीगेगा तो उसके बाद उसको पेन्स या स्किन सिम्टम्स, और इसको हम डर्मेटोलॉजी में स्किन में भी उस वक्त यूज कराते हैं जब पेशेंट कहते हैं जी सर्दियों में, ठंड में, मॉइस्चर में, पानी की एप्लीकेशन से मेरी तकालीफ बढ़ जाती हैं, ठंडे पानी की एप्लीकेशन से मेरी तकालीफ बढ़ जाती हैं। तो वो प्रूवर ने भी यही लिखा है कि जब मैंने इसको ड्राई स्किन के साथ कांटेक्ट किया तो मुझे इतनी सिम्टम्स नहीं आई। जब मेरे स्किन पर परस्पिरेशन था, स्वेटिंग थी, उस वक्त मुझे इसकी बहुत ज्यादा अलामात आई हैं। अगर हम इसकी साइकोलॉजी पे बात करें, साइकोलॉजी पे यानी इसकी माइंड सिम्टम्स पे, साइकोलॉजी पे अगर इसकी बात करें तो एक इसकी अहम सिम्टम है डिलीरियम विद फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड। डिलीरियम विद फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, यानी इसके मरीज को एक खौफ रहता है कि उसको जहर दे दिया जाएगा। डिलीरियम विद फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, ग्रेट एंजाइटी टुवर्ड्स इवनिंग, ये डॉक्ट्राइन के साथ मैच कर गई। ग्रेट एंजाइटी, डॉक्ट्राइन में भी मैंने यही कहा था कि शाम के वक्त इसकी पॉइजनसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसके लीव्स को कलेक्ट भी शाम को किया जाता है क्योंकि उस वक्त उनके अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। अब प्रूविंग भी यही कह रही है कि इस पेशेंट्स की एंजाइटी, ग्रेट एंजाइटी टुवर्ड्स द इवनिंग, शाम के वक्त इसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज है एक्सट्रीम रेस्टलेस, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, बेचैनी, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस विद कांस्टेंट चेंज ऑफ पोजीशन, कांस्टेंट चेंज ऑफ पोजीशन। डॉक्टर नैश ने भी इसको अपनी रेस्टलेस की जो उनकी ट्रायो है, ट्रायो मीन्स कि वो 3 रेमेडीज का ग्रुप बनाते हैं, ट्रायो 3 रेमेडीज का। तो रेस्टलेस में, बेचैनी में उन्होंने जो 3 रेमेडीज का ग्रुप बनाया है, एकोनाइट, आर्सेनिक, रेस्टॉक्स, एकोनाइट, आर्सेनिक, रेस्टॉक्स। लेकिन इन तीनों की बेचैनी में फर्क होता है। एकोनाइट मोस्ट प्रोबेबली मेंटल रेस्टलेस, आर्सेनिक में आमतौर पर फिजिकल रेस्टलेस भी होती है साथ, जैसे वो प्लेस चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह बैठेगा, दूसरी से तीसरी जगह बैठेगा, कभी कुर्सी पे बैठेगा, कभी बेड पे बैठेगा। लेकिन रेस्टॉक्स जस्ट पोजीशन चेंज करेगा, करवट लेगा, पेन में यानी कि या बुखार में अपनी एक तरफ वाली पोजीशन को दूसरी, सिर्फ पोजीशन चेंज करेगा। और रेस्टॉक्स का मरीज पोजीशन चेंज क्यों करता है? अभी हमने पढ़ा कि इसके पेशेंट्स को मूव करने से अफाका होता है, बेटर होता है, बेटर बाय स्लाइटेस्ट मूवमेंट। यानी एक जगह पे जब रेस्ट में आएगा, जब इसकी बॉडी रेस्ट में आती है तो इसकी सिविरिटी बढ़ जाती है, इसकी लमात सीवियर हो जाती हैं। लेकिन ये जब थोड़ी सी भी पोजीशन को चेंज करता है, वो पोजीशन चेंज इसलिए करता है क्योंकि चेंज उसको बेटर महसूस होती है। इस बेटरमेंट के लिए वो क्या करेगा? पोजीशन चेंज करेगा। एक्सट्रीम रेस्टलेस विद कांस्टेंट चेंज ऑफ पोजीशन। एक और इसकी साइकोलॉजी की सिम्टम है सेंसोरियम बिकम्स क्लाउडी। ब्रेन के अंदर जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा सेंसोरियम होता है, जो तमाम जैसे आप कहते हैं कि मालूमात को इकट्ठा कर रहा होता है, एक्सट्रीम सेंसोरियम बिकम्स क्लाउडी। इसका सेंसोरियम धुंधला होता है, धुंधला होता है, यानी बात को करने और समझने में क्लियर नहीं होगा।
स्लो इन आंसरिंग। अगर आप उससे कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो उसका जवाब बड़े स्लो और कंफ्यूजन में देगा, क्योंकि उसका सेंसोरियम क्लाउडी होता है। सैड पेशेंट begins to weep without knowing why. Sad patient begins to weep, रोना शुरू कर देगा। जब आप वजह पूछेंगे तो कुछ भी नहीं, विदाउट नोइंग वाई, बगैर ये जाने हुए कि क्यों। सैड पेशेंट बिगिंस टू वीप विदाउट नोइंग वाई। ये तो इसकी साइकोलॉजी या माइंड सिम्टम्स थी। अब अगर हम इसकी फिजिकल सिम्टम्स पे आए, फिजिकल सिम्टम्स पे, तो इसकी जो फिजियोपैथोलॉजिकल चेंजेस हैं या जो इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली फेवरेबली इसका जॉइंट्स पे होता है, मसल्स पे है, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम, जॉइंट्स, मसल्स, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, मसल्स, टेंडॉन, लिगामेंट्स, यानी जिसको हम कह सकते हैं स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम। दूसरा इसका डर्माटोलॉजी, स्किन पे बहुत बड़ा इसका एक्शन है। स्किन की लामात, स्किन में ईचिंग, ड्राइनेस, उडीमा, स्वेलिंग, बर्निंग, रॉनेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इन दो फील्ड्स में, यानी एक लिगामेंट्स, जॉइंट्स, मसल्स पेन्स में और दूसरा स्किन में, तीसरा हम इसको पीरियोडिसिटी, पीरियोडिकल फीवर्स में भी यूज करवा सकते हैं, फीवर्स में भी। लेकिन फीवर्स में कंडीशन ये है कि वो डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर्स की वजह से फीवर हो रहा हो, चाहे वो टाइफाइड हो या जिसमें GAT की इन्फेक्शन में बात ब्लडी स्टूल्स एंड यूरिन fever which is often typhoidal or intermittent in character, rheumatoid arthritis, पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारे पास आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें बाज़ औक़ात ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से इन्फ्लेमेशन आ रही होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से RA फैक्टर पॉजिटिव होता है, तो उसमें भी हम इसको यूज करा सकते हैं। एक और बड़ी इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है कैल्केनियल स्पर, जहाँ पर हमें बाज़ हील्स पर या बाज़ जहाँ कहीं पर भी बोन्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, स्पर बन जाता है, इसको कैल्केनियल स्पर कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन भी हमारे सामने आ जाए, कैल्केनियल स्पर या एक्स्ट्रा ग्रोइंग ऑफ द बोन्स, उसमें हम इसको यूज करा सकते हैं। शाटिका जिसमें वर्टेब्रा में डिस्क हर्निएशन हो जाती है, डिस्क में गैप आ जाता है, डिस्क डिस्प्लेस हो जाती है, उसमें जहां वहां से जब नर्व्स निकलती है बिलखुसूस शैटिक नर्व्स, तो उस पर प्रेशर होता है, उसकी वजह से पूरी टांग में दर्द आता है, पूरे पांव तक, शाटिका। लेकिन शाटिका में बहुत सी रेमेडीज हैं, इसकी एक ही सिम्टम होती है कि पेशेंट आमतौर पर शाटिका के साथ इसकी इलामात बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। वो इसलिए हैं कि शाटिका का पेशेंट भी मोस्टली ये कहता है कि जब मैं एक जगह बैठ जाऊं तो मेरे लिए वहां से उठना महाल हो जाता है, उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको सहारा दे के बाजू का तो उठाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा जब वो चलता है तो फिर उसमें बेहतरी आ जाती है। तो इसलिए हम इसको मोस्ट प्रोबेबली शाटिका में भी यूज कराते हैं। जैसे मैंने कहा डर्मेटोलॉजी में ये हर्पीज ज़ुस्टर एक इन्फेक्शन होती है, उसके साथ राइटर्स ने लिखा है कि हर्पीज ज़ुस्टर के साथ इसकी इलामात बहुत ज्यादा मैच कर रही होती हैं।
अब अगर हम इसकी मोडेलिटी की बात करें, मोडेलिटीज की, यानी इसकी अच्छा, बैकिक में, बैकिक में हम इसको यूज करते हैं पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक। ये वही मैंने कहा, बाज़ औक़ात जो है वो डिस्क प्रोलैप्स की वजह से बैकिक हो रहा होता है, वहां पर स्टिफनेस महसूस हो रही होती है, लेकिन पॉइंट वही याद रखेंगे, बेटर बाय मोशन, better by motion or lying on something hard। अच्छा, इसका मरीज हार्ड चीज पर, सख्त किस्म के बिस्तर को प्रेफर करता है, वहां इसको ज्यादा आराम आता है। और लाइंग ऑन, बेटर बाय मोशन और लाइंग ऑन समथिंग हार्ड। वर्स वाइल सिटिंग, जब भी रेस्ट करेगा, सुकून से बैठ जाएगा, तो बैठने के बाद फिर इसकी तकालीफ में इजाफा हो जाता है। सेम पोजीशन इसकी एक्सट्रीमिटीज में है, टीयरिंग पेन्स इन टेंडोन्स, लीगामेंट्स, ये तमाम चीजें इसमें आ रही होती हैं। शाटिका, शाटिका में फिर वही बात, वर्स कोल्ड डैम्प वेदर, डॉक्ट्राइन के साथ इसको लिंक करना है। शाटिका में भी क्या है, वर्स कोल्ड डैम्प वेदर और एट नाइट, क्योंकि इसको मैंने कहा ना कि अगर रात के टाइम ज्यादा टॉक्सिक होता है इसका प्लांट। अब इसकी तमाम सिम्टम्स भी तकरीबन रात को एग्रावेट कर रही हैं। अच्छा, एक इसकी बड़ी टिपिकल सिम्टम होती है, इसके पेशेंट्स की जो जुबान है, जुबान की जो टिप है, वहां पर रेड कलर की ट्रायंगल बनती है। जो जुबान की टिप है वहां रेड कलर की ट्रायंगल आती है, एक मुसल्लस बन जाती है। ये कभी कभी आपको प्रैक्टिकली पेशेंट्स में मिलेगा कि हम जब उन्हें कहते हैं कि ये आप जुबान चेक करें, तो जुबान पर, बिल्कुल जुबान की टिप पर रेड ट्रायंगल बनी होती है। ये इसकी की नोट सिम्टम्स में है। इसकी इसकी एनीमिकल्स में ये याद रखना है कि इसके एनीमिकल्स में एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका को कभी भी इसके साथ इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि एपिस और रेस्टॉक्स के मिजाज में फर्क है। बाज़ औक़ात स्किन में हमें कुछ सिम्टम्स कॉमन आ रही होती हैं, लेकिन इसको एपिस के साथ यूज नहीं करवाना, क्योंकि एपिस इसकी इनिमिकल है। एपिस का मिजाज हॉट है, गर्म है, उसकी तकालीफ सारी गर्मी से बढ़ती हैं, गर्म जगह पर बैठने से, गर्म पानी के एप्लीकेशन से। एपिस मेलिफिका। रस्टॉक्स अभी हमने पढ़ा कि डैम्पनेस, मॉइस्ट, कोल्ड, बारिश में भीगना। तो चूंकि इसके मिजाज में फर्क है, इसलिए एपिस मेलिफिका इसकी एनिमिकल में आती है। एनिमिकल, एपिस मेलिफिका। ब्रायोनिया इसकी कॉम्प्लीमेंट है। कैलकेरिया फ्लोर इसकी कॉम्प्लीमेंट है। फाइटोलिका बिलखसूस रोमाटिज्म में कॉम्प्लीमेंट है। आर्टिकेरिया में, यानी जो स्किन सिम्टम्स की आर्टिकेरिया होती है, उसमें बोविस्टा के साथ हम इसको यूज करा सकते हैं। ये इसकी सारी कॉम्प्लीमेंट है। एपिस मेलिफिका इसकी एनिमिकल्स हैं। मोडेलिटीज में जैसे मैंने कहा कि वर्स ड्यूरिंग स्लीप, कोल्ड वेट रेनी वेदर, आफ्टर रेन, एट नाइट, ड्यूरिंग रेस्ट, ये तमाम मामलात में इसकी तकालीफ बढ़ जाती हैं। बेटर वार्म और ड्राई, बेटर वार्म और ड्राई। जब भी इसकी, हालांकि स्किन की एलर्जी को भी आप गर्म पानी से धोएंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। व्हेन बेटर वार्म ड्राई, मोशन, चेंज ऑफ पोजीशन, वार्म एप्लीकेशन, इन तमाम चीज़ों से इसकी तकालीफ बेहतर होती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पॉइजनस ईवी है, तो इसको हम मोस्ट प्रोबेबली फिजियोलॉजिकल डोजेज में भी यूज करा सकते हैं, लेकिन फेवरेबली हम इसको होम्योपैथिक डोज में, यानी पोस्ट एवोगैड्रो, पोस्ट एवोगैड्रो पोटेंसी इसकी बेहतर रिकमेंडेड है। 30 C, 200 C, 1000 C, which is 1 M, 10,000 C, that is 10 M, 1 lakh C, that is CM। इसकी जो होम्योपैथिक डोज है पोस्ट एवोगैड्रो,
that is the most favorable potencies. یہ اس کی مختصر سی انٹروڈکشن ہے. ویسے تو یہ پولیکریسٹ ریمیڈی ہے, اس کا احاطہ کرنا, اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کی جو چیدہ چیدہ جن سے ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں اس سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ سمٹم اس کی اہم سمٹم. تھینک یو. السلام.